Okay guys, I'm moving from Dhanolti, so I'll be taking a different route. Now I won't be going through the one that goes to Mussoorie. Rather, I'll be going to from the backside. That side it ends. That is a longer route, 100 kilometers. It's the same one that connects to Uttarkashi as well. So let's start. Okay. One moment. So as you can see, we get very good parking in Dhanolti. It's free parking. So see from the back route. So this is the one that's uphill. See on the right we have Pawar. It's a wonderful drive from here, as you can see. Slightly longer, but I like this route. Even though अब इस पे भी रोड थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई है. अभी there are hardly any tourists, but it's a wonderful morning. ऐसा जो मॉर्निंग होता है ना, ये आपको यहीं मिलेगा पहाड़ों में. ये दिल्ली या मेट्रो सिटीज में नहीं मिलने वाला. Who feels like going out in the morning, but यहाँ आओगे तो every morning you would want to go out. As you can see, this is the beautiful Dhanolti with a wonderful route. तो यहाँ आपको तेज नहीं चलाना है. Keep your car on the third gear and just drive smoothly. Though yeah, the speed limit here is around 40. If you want, you can keep it on that, or else maximum to maximum downhill आएगा, आपका थोड़ा speed बढ़ ही जाएगा. And now we have such turns, so brake मारो, give horns. You have some very dangerous turns here, and suddenly गाड़ी आ जाएगी. But it's a wonderful route. I mean, driving enthusiast would love to drive here. That's one of the main reasons I come here. But अभी आगे चल के उत्तरकाशी वाला रोड पे कनेक्ट हो जाएगा ये, and the road would be slightly so this time there's a lot of traffic in Rishikesh because we'll be connecting to Rishikesh through this route. जो दूसरा वाला route है that connects to Mussoorie. So फिलहाल हम अपना हिंदी लोकल गाने सुनते हुए जाएंगे. Now we can see if we can find some other channels. ये भाई ये तो भाई पुराने गाने चार्ज हो गए. कुछ नया कर दो. Nothing. The radio has to improve. They should have some good channels. कुछ है क्या? Yeah, I think it's because of Uttarakhand में you don't have those channels that like we have in Delhi. But as can you see the route? ये देखिए दो लोग जा रहे हैं अपना लेके. This is the daily routine. एक्सरसाइज की क्या जरूरत है इधर? यही एक्सरसाइज है भाई. दिल्ली में हम हिलते नहीं है. ये इनका डेली रूटीन है पहाड़ों पे. Getting water, getting essentials. भैया रेडियो पे तो कुछ नहीं है, भूल जाओ रेडियो. तब ऐसा करते हैं, आप मुझे ही सुनो यार.
That will be better than any radio. Okay, so अभी बहुत दूर है यार. 100 kilometers is a long route to Rishikesh, and यहाँ से tourists will start coming. So what I did is I took a week off on Monday. कि भैया अब संडे पहुंचोगे थोड़ी भीड़ होगी, but then Monday while coming back it would be, it would have less traffic. See, so suddenly you'll have cars coming at good speed, and you won't be able to see them. So you have to be careful. Always alert. That's how you drive on the mountains. So many hotels, and the scenery is beautiful. I mean, anyone who comes to Dhanolti, भैया कुछ भी, whether जून में आओ, मई में आओ, भैया आप अपने साथ जैकेट वगैरह ले आना, because yesterday it rained very heavily and इतनी ठंड होगी ना यहाँ. दिल्ली में हम सब कुछ वापस डाल चुके हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, वेस्ट में घूम रहे हैं. यहाँ अभी भी ठंड है भाई. So अब ऐसे टर्न्स में be careful. Those who are misers who 1-1 किलोमीटर देखते हैं अपना, तो उनके लिए मसूरी रूट. But anyone who can spend a bit and wants to enjoy the ride, come through the Rishikesh route. खाली roads हैं, कम गाड़ियां दिखेंगी, as you can see here. I'll have to edit this video because इतना लंबा तो हम डाल नहीं सकते, तो जितना भी मेन होगा मैं डाल दूंगा. Lot of turns. but देखो एक चीज अच्छा है, यहाँ पे ज्यादा चढ़ाई नहीं है, because I'm actually going downhill. So it's not Delhi to Dhanolti, it's Dhanolti to Delhi is what I'm making. So while coming, मैंने काफी स्टॉप्स लिए थे, तो रुक गया था वो वीडियो. So hopefully here I'll able to cover the major one. अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि लैंडस्लाइड्स होते हैं, एंड एक छोटा सा भी लैंडस्लाइड रोड कवर कर देगा. अभी आपको दिखाऊंगा फ्यू लैंडस्लाइड. अभी तो नहीं है. सी, Dhanolti से चंबा तक यू वोंट फाइंड एनीथिंग. रोड इज स्मूथ. चंबा से जो ऋषिकेश होता है वहां लैंडस्लाइड्स मिलेंगे. Beautiful. So हमेशा आप जितना आगे तक देख सको while driving, you should, so that you know if there's a car coming or not. If there's a car coming, then you have to be careful. But it's not that you're just looking on the road. आप आगे जहाँ road connect हो रही है ना, वहाँ भी देख के रखो, so that you are well aware कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, because you will get such turns where you're not able to see much. ये भाई साहब अपना enjoy कर रहे हैं. Wonderful. You have a lot of bikers here. They come on the Himalayan bikes, which are meant for good off tracking. Basically, आपको जब लेह लद्दाख जाना होता है ना, that is the answer. So I hope till now you're enjoying the route because it is easy. ये देख रहे हो पत्थर गिरा हुआ है, तो ऐसे पत्थर गिरते रहते हैं यहाँ पे. So my advice to you is, since you have landslides after Chamba,
try and come before the rain. भैया after the rain लैंडस्लाइड होते हैं भैया, अवॉइड करना. जुलाई अगस्त में तो जाना, तब तो बारिश होती है और लैंडस्लाइड 100% होते हैं. एंड उससे आगे पीछे जाओगे तो लैंडस्लाइड देखोगे कि क्या डिस्ट्रक्शन हुई थी. एंड लैंडस्लाइड में व्हाट हैपेंस इज द हाफ ऑफ द रोड वुड बी कवर्ड. वो भी कवर्ड नहीं, वैसे पूरा कवर्ड होता है. गवर्नमेंट आके ना थोड़ा खाली कर देती है कि एक साइड तो खुला रहे. सो द पीपल ऑन द माउंटेन्स, द वे दे ड्राइव, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. एक साइड रुक जाएगी, दे विल वेट फॉर द अदर साइड टू पास. आई मीन दैट्स हाउ अंडरस्टैंडिंग लैंड. यहाँ भी हुआ था थोड़ा सा. तो आई विश ऐसे सिटीज में भी लोग समझे, the understanding and they drive properly. बट यहाँ नहीं होता यार. दिल्ली, मुंबई, इन सब में जाओ, सबके सब. ये देखो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था थोड़ा, पर हटा दिया है. ये देखो पत्थर, देखो ये एक पत्थर भी गिर गया ना किसी पे, ये डन, डूम्ड. अच्छा, अब यहाँ पे ना देयर विल बी अ मंदिर. So here you let the car go. अब यहाँ पे there's a very famous मंदिर, मैं आपको दिखाता हूँ. I think शुक्राता मंदिर, देख के बताता हूँ. Which is very near to Dhanolti. I mean you can come and visit here and अभी आएगा मंदिर, मैं आपको बताता हूँ. There's a very famous mandir, Surkhanda Mandir, I think. Surkhanda Devi Mandir. All of them, they've come here for the darshan. मैं भी कल आया था. बहुत ट्रैफिक था यहाँ पे, बड़े मुश्किल से पार्क हुई है. I was able to take the darshan. बस लोगों से ध्यान से. एक तो रोड्स कम होंगी, छोटी होंगी, एंड यहाँ लोग भी होंगे. यहाँ पे अभी तो नहीं है. The reason I moved I'm moving in the morning is traffic now. But ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक आ जाएगा. Like I said, थर्ड गियर पे लगाओ, 40-50 पे जाओ चुपचाप. ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है. बट अभी वीडियो ऑन है तो तभी सही चला रहा हूँ. जो वीडियो ऑफ होता है तब मैं और सही से चलाता हूँ. सो एनीहाउ, सो इट्स अ वेरी गुड रूट यार. आना चाहिए. पीपल शुड कम हियर. स्पेशली दोस्त लव टू ड्राइव, जिनको ठंड पसंद है या जिनको एक्चुअल माउंटेन में घूमना है. कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है. I mean, no offense to Kashmir, but this is as beautiful as Kashmir. Dhanolti अब मैं आपको पूरा दिखाया नहीं मैंने. I've just shown you the route, but it is very beautiful. You have a few places to visit there. वहाँ पे एक तो there's a kind of a national park. I forgot the name of the park. It's a very long park. मतलब मैं एक बार घुसा और भैया नेवर एंडिंग पार्क है वो. मतलब घूमते जाओगे. मैं 2 घंटे बाद मैं ऐसी जगह पहुंचा भैया, कुछ भी नहीं, मीलों कुछ नहीं. और वह बंदर तो वैसे ही घूम रहे हैं. मैं यार चुपचाप वापस चलते हैं. इट वाज लाइक जा रहे हो स्वर्ग के रूट पे. ये अब सीधा जाके स्वर्ग पे ही ले जाएगा आपको. सो वो आपको ट्राई करना चाहिए. प्लस इट्स वेरी पीसफुल इन Dhanolti.
But don't come in June, May, June because बहुत भीड़ होती है. The best time to come is जून एंड या जुलाई के शुरू में, जब बारिशें स्टार्ट हुई होती है. ज़्यादा नहीं होती है, बट थोड़ी जो हल्की हल्की बारिश पड़ेगी और यहाँ पे पूरा फॉग होगा. और ऐसा फॉग होगा मूवीज में नहीं होता कि फॉग आया और फिर 1 मिनट में गायब हो गया. See the way they drive, they don't leave any space, but you have to drive very carefully. If you're good at driving, then come to Dhanolti. Dhanolti में roads are quite narrow and a lot of turns, blind turns. So you have to be careful while driving. Even though, I mean, when you look at such roads, you'd like to speed, but I would suggest do not. तमीज़ से जाओ and तमीज़ से आओ. Nothing more precious than your own life. देश लागे कुछ मिल नहीं जाएगा. हाँ, जहाँ पे आपको हाईवे पे लिखा हुआ है 100-120 स्पीड मैक्स लिमिट, वहाँ चलाइए. Not on the mountains. Because it's not कि आप तेज चला सकते हो, नहीं चला सकते, आप चला सकते हो. आप क्या चला सकते हो? सब चला सकते हैं. हर एक की गाड़ी, एक आप, I mean, forget about having a very good car. आप एक मारुति ऑल्टो देख लो, ऑल्टो भी चली जाएगी 120-140. So nothing to be very proud about. ये क्या था? The mountains में ऑल्टो सबसे ज़्यादा चलती है, पर बड़े तमीज़ से चलाते हैं लोग. Because a lot of people over here, local people, they know how to drive on the mountain. The people coming from the cities, they have to be careful. It's been more than 20 years for me driving, but I really don't. And it doesn't matter what age you are. This happens when you're in teens. This happens when you're in 20s, 30s, 40s, 50s. Because people, they just don't grow up. अब आप सोच रहे होंगे यार ये बच्चे वाली चीज है बच्चे वाली चीज. बट लोग, पीपल डोंट ग्रो अप. एक ही चीज प्रूव करने में लोग लगे रहते हैं कि हम बेटर हैं सबसे. जो इंसान भगवान में बिलीव करता है ना, उसे पता है ही इज नथिंग. और जो थोड़ी चीजें मिली है ना, भगवान ने दी है. तो ये चीज लोगों को याद रखनी चाहिए कि डाउन टू अर्थ रहो, लोगों को रिस्पेक्ट करो. ऐसे लोगों को भी रिस्पेक्ट दो जो आपको हमेशा बुरा बोलते हो. अब ये भाई हैबिट है या जानबूझ के करते हैं, आई डोंट नो, बट उनको भी रिस्पेक्ट दो. मे बी देखो, भगवान हर एक को सिखाता है. किसी को जल्दी सिखाता है, किसी को बाद में सिखाता है, बट भगवान सिखा देते हैं सबको ही. तमीज, ये एरोगेंस वगैरह. जैसे रावण थे, रावण भी जाते हैं. जब रावण की फॉल क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एरोगेंस. तो वो भी जाते जाते समझ गया. इनफैक्ट वो ऑलरेडी जानता था. इट सीम्स लाइक वो उस टाइम ये सब हुआ कि आगे की जो युग है उन्हें सही और गलत का फर्क पता हो. रावण इन एक्चुअल वाज बहुत बड़ा ज्ञानी था. एंड ही न्यू राम इज गॉड, बट वो अपने एरोगेंस में रहा. बिकॉज उसे भगवान के हाथों ही मरना था, ये उसकी विश थी. ये देखो ऐसे टर्न्स आएंगे, बी वेरी केयरफुल.
ये रामायण से बहुत चीजें सीखने को मिलती है. आई रिमेम्बर मैं छोटा था, मैं रामायण से बोर होता था. रीजन बता देता हूँ. थैंक यू. देखो ऐसे लोग, दिस गाय न्यू हाउ टू ड्राइव वेल, ये रुक गया. जैसे मैं पहले नहीं रुका था. So this is what is needed while you're driving on the mountains. Anyway, coming back to ज्ञान. So यार the music भी सुनता हूँ मैं, ज्ञान बांटता हूँ फ्री का. So यार हमें रामायण फिर से देखनी चाहिए बार बार, क्योंकि रामायण में बहुत ज्ञान है. जब छोटा था तो मैं मुझे वॉर सीन्स पसंद थे, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आपका बहुत सारे आंसर देगी लाइफ के बारे में. आई एम श्योर दोज हु आर वाचिंग इस एज पे जब पहुंच ही चुके होंगे, देयर एंड दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एंड वो सोचते होंगे यार हमें क्यों दुख मिल रहा है, हमें क्यों ये. एंड ऐसा नहीं है कि बस हमारे बुक में है, हर एक के बुक में है. अब you'll see politicians, so politicians ये बस हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड करते हैं सबको, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था. Because they know the formula. Whether आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपनी रिलीजियस बुक्स प्रॉपरली पढ़ोगे ना, तो यू रियलाइज. ये देखो ऐसे बहुत कार्स आएंगी. ड्राइव केयरफुली. हाँ, तो ये जितने भी बुक्स है ना हमारे रिलीजियस, जो अपने रिलीजन को प्रॉपरली समझ लेगा, then he will love everyone regardless of what religion they come from, because if God is one, then God has made everyone, right? So ये छोटी सी चीज लोग भूल गए हैं, बिकॉज आजकल इतना हिंदू मुस्लिम डिवाइड, एंड फिर पता है वही लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, एंड वो चीज आगे बढ़ती रहती है. अब अपने रिलीजन की बात कर लेते हैं. क्या श्री राम ने ये बोला था कि दूसरे रिलीजन के लोगों को नफरत करो? नहीं ना. उन्होंने क्या बोला था? सब साथ में रहो. तो ये रिलीजन ऑल मैन मेड यार. गॉड केम एट डिफरेंट टाइम. तुम लोगों ने अपने रिलीजन बना के एक दूसरे के बीच में लड़ते रहते हो, और इस चीज का फायदा उठाता है सेटन, बिकॉज ही वांट्स टू सी डिविजन. ही वांट्स यू टू hate each other, fight with each other, have wars. Now I'm looking at this war, Iran. अब ये ईरान वॉर क्या है? अरे एक ही वॉर नहीं है, हर चीज में आप कॉमन देख लो. कोरियन वॉर, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सुडान, and so many countries जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है. What is common there? I would not tell you what is common there. आप खुद ही guess कर लो. So there are powers जो इतने लालची हो चुके हैं, whether it's for oil, whether it's for money or power, they don't mind killing millions and millions of people, बेशर्मों की तरह. And it's sad to see our country is also affected by them, because देखिए, if we follow them, then you're on the wrong side. एक बार याद रखो, the world, we are here in this world for only 60-70 years. ठीक है, उसके बाद इटर्निटी आपको या तो
हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे, अपने कुछ साल के सुख के लिए आप नर्क में अगर जाने को रेडी हो, फिर आप गलत साइड को चूज करो। जो लोग मार रहे हैं, आप अगर उनका सपोर्ट करोगे, दैट इज फाइन, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है पावर में है, तो आप सही हैं, आप गलत हैं, ठीक है ना। पावर में होने का मतलब नहीं है कि आप सही हैं। पावर में तो रावण भी था, राइट। सो अपने हर एक्शन सोच समझ के लीजिए। अगर आप देख रहे हैं लोग मर रहे हैं या किसी ने लोगों को मारा है, मगर आपका क्या है, एक इंसान हजारों लोगों को मार देता है जो आपके कम्युनिटी के नहीं है, फिर आपको आके बोलता है कि भैया मैं आपको ग्रोथ दूंगा। यार आप लोग क्या करते हो, आप लोग सब भूल जाते हो, ठीक है। सो द बीस्ट ऑफ दैट मैसेकर आपका लीडर बन जाता है। तो इसमें और बाद में आपको पता लगता है यार गलती हो गई, पर इसमें गलती किसकी है, उसकी नहीं है। वो तो कर रहा है जो कर रहा है, शैतान है। पर आप क्या कर रहे हो, आप भूल गए इतने लोगों को उसने मारा। सो इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती आपकी है। आपने एक खूनी को सपोर्ट किया, यू आर इक्वली एज रिस्पॉन्सिबल। अब ये मत समझो कि भैया ये तो इलेक्शन हुए, हम तो गलत नहीं थे। भैया आप भी गलत थे। क्यों? बिकॉज आपने शैतान का साथ दिया, सिंपल। जो ह्यूमैनिटी को मारता है अपने लालच के लिए, वो तो शैतान है। जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी शैतान का साथ देते हैं। अडल्ट हो अब ब्रेन वॉश हो रहे हो, इसमें गलती किसकी है, आपकी अपनी है। आप इतने अंधे हो चुके हो, भगवान को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक इंसान को फॉलो कर रहे हो। ये इटसेल्फ दिखाता है आप भगवान को भूल चुके हो। तो अभी भी टाइम है, आंखें खोलो एंड सही का साथ देना स्टार्ट करो। एनी हाउ यार बहुत सारे घोड़े हैं यार, ये तो देखा ही नहीं मैंने आते हुए। आते कि सुबह ही आते हैं। बाद में हाउ डू यू फाइंड द रूट? आई थिंक मेरे ज्ञान में खो गए होंगे, गालियां दे रहे होंगे यार। ये हमें रूट दिखा रहा था या ज्ञान पेल रहा था? एनी हाउ द रूट इज ब्यूटीफुल यार। I love the route. That is why I don't mind coming 100 kilometers extra from Rishikesh. Rishikesh से तो रोड बड़ा इजी है, मतलब वहाँ से तो आराम से आ जाओगे। बस वहाँ ट्रैफिक एक बार झेल लो। गिरीश कैफे। अब ऐसे you'll find a lot of different कैफेज। या मैं चाहूँ यहाँ से तेज जा सकता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, बट आई डोंट वांट टू। आजकल ना मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं बहुत। मैं भाग नहीं रहा हूँ अब पहले की तरह। अरे मतलब पहले लोग पता क्या भागते हैं, जैसे पता नहीं क्या ये लगा 30 किलोमीटर लगा हुआ है स्पीड लिमिट। तो लोग भागते हैं कि पता नहीं क्या छूट के जा रहे हैं। यार कुछ नहीं छूट के जाता, आराम से रहो, टेंशन कम होगी, बिना डर के रहो। भगवान आपके साथ है हमेशा। बिलीव इन गॉड एंड गॉड विल बी देयर फॉर यू। देखो आई बीन
alone for more than 2 decades, and I'm telling you that I was able to survive because God did some miracles in my life. Right? मतलब मेरी औकात नहीं थी, I'm sorry to say. मैं डिजर्व नहीं करता था, मगर God gave me a little bit which I didn't even deserve. Right? So He gives you more than you deserve, and आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है. अब आप बोलोगे यार ये बंदा इतना रिच है, हम नहीं हैं. यार बिकॉज आप नहीं होना चाहते हो, आप सोचते हो यार मुझे रिच कर दे, मगर आप उस पे काम करने को रेडी नहीं हो, विच मीन्स यू आर नॉट दैट सीरियस. देखो, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द सीक्रेट्स and about the power of attraction. It is quite true. आप जिसे अट्रैक्ट करोगे ना, वो चीज आपके पास आएगी. अब इसका ये मतलब नहीं आपने बोल दिया वो हो जाएगा, नहीं. आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू अट्रैक्ट दैट थिंग. पूरा टाइम यू विल हैव टू बी 100% फोकस्ड ऑन अट्रैक्टिंग जो भी आप चाहते हो. पता एक सबको ना एक विश मिला हुआ है, आपको जो चाहिए लाइफ में आपको मिल जाएगा. अब देखो, हर कोई नहीं चाहता अंबानी बनना. ओनली अंबानी वांट्स टू बी अंबानी. ठीक है, एक इंसान एक घर के साथ भी खुश हो जाता है, एक गाड़ी के साथ खुश हो जाता है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे माँ बाप के टाइम पे दे ओनली हैड वन गोल, यार रिटायरमेंट से पहले ना घर बना ले. वो बना लेते थे भाई. फिर नई जनरेशन आई, उनका था भैया जॉब लगते ही ना पहले 5-10 साल में घर बना लेते हैं. वेदर यू टेक लोन और व्हाटएवर, ये लोग अपना घर ले लेते थे. राइट? सो इट बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होना है. इफ यू डिसाइड कि भैया मुझे 10 साल में आप टू बिकम ब्लडी फुलफिल्डी रिच, यू विल बिकम, बिकॉज यू गोइंग टू वर्क ऑन इट. बट अगर ये सोचता है अरे यार मुझे हो जाए, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, विच मीन्स यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी. अब बोलने से कुछ नहीं हो जाता. राइट? आई मीन I don't want to give my example. I don't want to be proud of anything. I mean, at the age of 30 exactly, I had 0 penny in my account. Right? मैं समोसा और ब्रेड पकोड़ों पे जी रहा था. Sad, but that is how it is. And I had a business which I had to shut down. It led to my downfall. So शुरू में I had a good job, and then I did business. I saw good money. और फिर वो business फिर ठप हुआ because of some issue with my partner. But then I started the job again at zero money in my account. And then I was able to make my own house, buy my own car, and not on loan, by the way. कुछ लोन पे नहीं. Right? So how was I able to do it? Because मुझे जो चाहिए था, जितनी जल्दी चाहिए था, मैंने उतनी जल्दी के लिए मैंने मेहनत की. राइट? कि 10 साल के अंदर आपको जो थोड़ी बहुत चाहिए आप ले लोगे. राइट? एंड मैं आप लोगों की तरह ऐसा नहीं है. पता है, स्टार्टेड 15,000 सैलरी, मगर 15,000 सैलरी में मैं 1,000 के रूम में रहा, सो दैट आई कैन सेव दैट हर महीने 10,000 रुपए बचाओ. सैलरी बढ़ती रही, बट मैंने अपने खर्चे नहीं कम किए, मतलब खर्चे नहीं बढ़ाए. सो आई सेव, देन आई इन्वेस्टेड, एंड ये आपके ऊपर है. पर अगर आप बोलते हो यार हम मतलब
50,000 की सैलरी में हम 40,000 के घर में रहेंगे, फिर तो आप नहीं सेविंग कर सकते ना। तो अब आप देख लो, आई एम नॉट सेइंग दैट गो थ्रू माय पाथ, आई एम जस्ट सेइंग एक जॉब करने वाला भी he can save, invest, at the right places, and he can save money. Though yes, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, you could be having a huge family, हमें बहुत खर्चे हो फलाना ढिंका, then आपको थोड़ी और चेंजेस करने पड़ेंगे. But the point that I'm making is, if you want, you can do a lot of things, right? भगवान ने वो शक्ति दी है हर एक में. So believe in God. Believe that God is capable of lifting you. Wow यार, रोड तो आप देख ही रहे हो. It's beautiful. तो ज्ञान बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया. I don't know, पता है मुझे, I love to motivate people. I love, लोगों को, people get jealous of others. सामने की पर मुझे अच्छा लगता है अगर कोई सामने वाला प्रोग्रेस करता है, बिकॉज मुझे उसमें भगवान दिखते हैं कि भगवान ने कुछ चमत्कार किए. एंड if you believe in God, you got to be on the path of God. What is the path of God? The path of God is that you do and think exactly like God does. Right? आप सब में भगवान होते हैं, आप सब में शैतान भी होते हैं. आप किसको ज्यादा रखोगे वो आपके ऊपर है. एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, because God wants you to have those problems, because He will, make you grow, make you strong. पीछे गाड़ी आ रही है, उनको जिसको जान देता हूँ. ठीक है. So I want everyone should, do good in life. लोगों के अंदर होता है दूसरा बंदा कैसे प्रोग्रेस कर गया, एक जेलसी होती है. And मैं समझ सकता हूँ. मैं I'll tell you what, मैंने सारी फीलिंग्स देखी है और बाद में उन सारी फीलिंग्स से निकला भी हूँ, तो मैं वो फीलिंग्स समझता भी हूँ. कोई मैं संत महात्मा नहीं था, ठीक है ना. जब आपने देखा है, जब काम पे एक बंदा गोची करता है, बाद में वही गोची वाला बिकम्स अ क्वालिटी एनालिस्ट. परफेक्ट मैच. व्हाई? बिकॉज गोची वाले को भी पता होगा क्वालिटी, मतलब कैसे फाइंड करने हैं गोचियां. सो तो यार कोई अच्छा बुरा नहीं होता. अपने आप को ना, जो चीज़ कमियां है ना हमारे में, वो हम उससे उभरते हैं. अरे ये गाड़ी निकल के आ गई, इस गाड़ी को मैं अपना वो बना लेता, बकरा. हाँ, ये आगे जाएगी तो पता रहेगा. तो थोड़ी मुझे स्पीड लेनी पड़ेगी इसके लिए. आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको you have to keep improving all the time. आपको, आप भी कोई संत महात्मा नहीं हो, आप में भी कमियां होंगी और आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होंगी क्या कमियां हैं. राइट? तो अपनी कमियों को सुधारो.
शर्म वाली बात नहीं है यार। एक चीज सोचो, भगवान सबको माफ कर देते हैं। हम कौन है जब किसी के लिए हेट्रेड रखें। हाँ, मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, मैं मे बी उसे कट ऑफ कर दूं, मगर मैं माफ कर देता हूँ। क्यों माफ कर देता हूँ? बिकॉज भगवान भी माफ कर देते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। हम अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझते हैं, हम माफ नहीं करेंगे, हम भाई पता नहीं क्या है। तो अपने आप को सुधारो, सही वे पे रखो। तो गाड़ी तो मिल गई, इसी गाड़ी के आगे पीछे जाते रहेंगे, यही हमें हेल्प करेगी नीचे पहुंचने में। इसी के पीछे रहता है मेन। बिकॉज कोई गाड़ी सडनली आ रही होगी ना, तो इस गाड़ी से पता लग जाएगा। थोड़ी डिस्टेंस बना के चलते हैं, बट कल भी खड़ी हुई थी, कल से खड़ी हुई है बेचारी बाइक। तो अच्छे इंसान बनो यार, ईगो छोड़ दो, कम डाउन टू अर्थ, stop insulting people, stop making fun of people, stop being in the mood कि मुझे सब पता है, सामने वाला फुद्दू है। In fact, मेरे known में there are people, I remember, मुझे बोलते थे, मतलब, और मैंने उन्हें सोचने दिया ऐसे कि they used to think कि भाई I don't know how to drive। उनको 7 साल तक मैंने यही सोचने दिया। गलती से किसी ने मुझे ना एक दिन ड्राइव करते हुए देख लिया, बट आई डिड नॉट ट्राई एंड चेंज द ओपिनियन। आई लेट पीपल थिंक व्हाट दे थिंक, बिकॉज आई नो हाउ पीपल आर, एंड वो उनकी कमी है। ओ भैया, एंड दे आर नॉट एबल टू नो मी बेटर। तो इसमें मेरा घाटा नहीं है, इनका घाटा है। आई थिंक हम नीचे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ऋषिकेश। पर नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यहाँ नीचे होने के बाद फिर से एक बार ऊपर जाएंगे हम लोग, अपहिल। सो ये रूट हम आपको दिखाएंगे। देखो धूप बढ़ने लग गई। Probably, वाह, यहाँ आराम से बैठ के बंदा खा भी सकता है। Probably मुझे अब AC ऑन करना पड़ेगा। But I hope you love the route with all the ज्ञान and everything that मैं दे रहा था, मतलब जबरदस्ती का ज्ञान। I hope कोई इससे कुछ सीखे, if you think it's helpful। But अगर कुछ समझ में आए and it improves you as a person, that would be great। यार, भगवान के बारे में बात करने से जो शांति मिलती है ना, भगवान इज देयर। पता है, कलयुग में एक फायदा है कि आपको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मतलब वो नहीं जैसे आप देखते हो टीवी में कि भगवान आए, दर्शन दिए आपके सामने। वो दूसरे बाकी युग में होता था। कलयुग में इतना पाप है, आप बस भगवान की पाथ पे चलोगे ना, he will not come directly to you, but he will show you miracles to show his presence। And those who are blessed by God, God bless them। तो लोग बहुत
अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत पाप करते हैं, लोगों को गंदा बोलते हैं, फिर चले जाएंगे किसी मंदिर। वो बेसिकली एक टूरिस्ट बन के जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस होती है। भाई दिखाएंगे यार हम भक्ति, मतलब ये ऑलरेडी कलयुग के बारे में बताया हुआ था गॉड ने कि वो एक्चुअली में दे आर नॉट प्रेइंग गॉड, दे जस्ट टूरिस्ट। बस लोगों को रील में दिखाना है कि भैया हम भगवान के पास गए हैं। अब कल मैं गया हूँ मंदिर, मैंने उसकी रील भी नहीं बनाई। भैया तुम भगवान का रील बना रहे हो यार। मैं वहाँ नीम करोली बाबा भी गया था जब आश्रम, वहाँ पुलिस चिल्ला रही है कि रील मत बनाइए यहाँ पे, पीपल आर बिजी बिकॉज दे हैव नॉट कम टू अ मंदिर और an ashram. They have come here only to make reels. पर चलो वो न्यू जनरेशन है, मैं समझ लेता हूँ, बच्चे हैं वो बाद में सीख जाएंगे। बट यार आप 40-40, 50-50 साल ओल्ड लोग भी यही, बिकॉज अब ये टूरिस्ट स्पॉट जैसा रह गया है। ये गाड़ी रुकी क्यों? कि मुझे पकड़ा नहीं है, इनको अपना कुछ इन्हें अपना रील्स, इनको भी रील्स बना रहा होगा। रील तो वैसे देखा जाए मैं भी बना रहा हूँ। और अब दो इट्स अ कैम। ये देखिए हाउ इज द रूट। तो ये डाउन स्ट्रीट, ये जो डाउन हिल होता है ना यार, बी वेरी केयरफुल विद द स्पीड, इट विल provoke you to speed here, but do not speed here, not for yourself only, your own safety, for other safety as well, because आपको अपनी जान से ज्यादा सामने वाले की भी जान। अब मैं बताता हूँ, जब मैं खुद चलाता हूँ और जब मैं किसी के साथ चलाता हूँ, वेरी डिफरेंट। ठीक है, सो बी केयरफुल। ये रूट तो यहाँ यू विल हैव चंबा एंड ऑल। चंबा से हम जाएंगे राइट, क्योंकि जब आए थे तो हम गए थे लेफ्ट, अभी चंबा आया नहीं है, क्वाइट फार। ओ बंदर जी, जय हनुमान, जय श्री हनुमान जी। और इंसान को हमेशा लगता है इंसान को सब पता है, हमें कुछ नहीं पता यार। हम बस अपने एक्सपीरियंस के बिलीफ में हम बोलते हैं। आपको कभी ऐसे लोग मिले जो आपको गंदा बोले, हमेशा आपको नीचे करने की ट्राई करे, कोई बात नहीं, उनको भी ब्लेस करो, आगे बढ़ो। तो ये देखो स्पीड ब्रेकर, सडन स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे यार there are lot of places, lot of places where you can stop, you can eat, you can stay. मतलब एक धनौल्टी नहीं है, धनौल्टी के रूट में there are lot of places like you can see here. धनौल्टी is also one of such places only, कोई वो नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। अभी वो रूट आने वाला है जहाँ पे एक मसूरी जाएगा, एक दिल्ली जाएगा, एक ऋषिकेश जाएगा, तभी चंबा आने वाला है आई थिंक, तभी यहाँ ट्रैफिक लग गई है। आई होप ये निकल जाए। ये तो निकल गए, अब देखते हैं ये निकल पाते हैं, होपफुली। अब आप देख रहे थे गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, दैट्स Hyundai।
Hyundai is like this. You won't get to know गाड़ी ऑन है ऑफ है. जब स्टिल पे होती है ना, कंप्लीटली साइलेंट. वैसे चंबा से निकल जाऊंगे, बहुत ट्रैफिक होता है. स्पेशली डाउनहिल. अगर कोई ट्रक आ जाता है ना तो थोड़ा फंस जाता. अच्छा, ये तभी रुका था. ये अब मेरे पीछे आ रहा है. उसे पता था चंबा आने वाला है. He wanted some car to be in the front. भाई चलो मैं इसके पीछे चलता हूँ. ये हो गया मेरा बकरा. यो माँ, ये निकालेगा अब. देख लो, साइलेंट है कार. कार इज ऑन, but it's completely silent. This is one thing I don't like about 3-cylinder cars. धर आवाज आती रहती है, which is not good. ये निकाला. अरे अंकल चले जाओ यार. ये इतना भारी उठा के ला रहे थे ना अंकल. और ये देखो पूरे स्टीप से ला रहे थे. ये चलते भी है. अब जो उनको चलना भी है, पहले उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं. वही हमारा एस्केप रूट है. और चंबा से हमें जाना है राइट. कल ये आते हुए ना मैं ट्रैफिक में आया था. ये पूरा भरा हुआ था. आज तो खाली है. I think because it's just morning ना. Agar you come here in the afternoon, you know, people come here to shop. हाँ. तो यहाँ स्टिल 2 गाड़ियाँ निकलना थोड़ा टफ हो जाता है. तो ये पीछे वाले अंकल ने मुझे रखा था एज ए बकरा. मैंने इनको रख लिया एज ए बकरा. ये रास्ता निकालेगा और हम निकलेंगे. ये अंकल रुक क्यों गए हैं? इसको रास्ता नहीं पता होगा लग रहा है. हमें जाना है राइट. यही है ना मोड़. भैया ऋषिकेश नीचे से घूम के ना. हाँ, अच्छा राइट जाना. हम अभी लेफ्ट ले रहे हैं पर घूम के आएंगे राइट लेने के लिए. ट्रैफिक है ना, अभी कुछ दिख नहीं रहा था. यार ये बंदा चला क्यों नहीं रहा है यार? इसे चलाना आता नहीं है, तभी इतने आस्ते आस्ते निकल रहा है. लोग है ज़्यादा. इसके चक्कर में टर्न ना मिस हो जाए. भैया ऋषिकेश. हाँ इधर से. वही लड़का सही है. हाँ लिखा हुआ है थैंक यू ऋषिकेश. यहाँ हो गया ना राइट. यही से आया था. राधा ब्रदर्स. अरे आंटी बग्गू. रास्ता. तो यहाँ ना एक मोड़ आता है बस, जहाँ से आपको ना जब आप दिल्ली से आते हो सो यू विल हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न. चंबा से इधर चंबा है. तो जब आप वापस आ रहे होते हो, जैसे मैंने क्या किया, राइट लिया इसी रोड पे ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दिस रोड विल गो स्ट्रेट टू ऋषिकेश. एक टर्न याद रखने ना कि चंबा से आपको
आते हुए लेफ्ट लेना है, और जाते हुए राइट लेना है। अच्छा वाह, बस आ गई, बस का क्या करे, बस इसको जाने देते हैं। अब यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगी बिकॉज इट्स मॉर्निंग एंड टूरिस्ट विल बी कमिंग फ्रॉम हियर। Denolti का क्या है, people don't come to Denolti, they go to other places for the same route. But यहाँ से you might see traffic. बच्चे चला रहा है बाइक। तो वो जो याद है मैंने इनोवा दिखाई थी वो मेरे पीछे आ गई है। Why? Because ट्रैफिक आ गया ना, उसे चाहिए होगा पकड़ा। जब ट्रैफिक हटेगा तब वो आगे जाएगा मेरे से। रुक जा भाई, इतनी जल्दी क्या है। तो इनोवा जी वो पर्पसली इज नॉट मूविंग बिकॉज वो मेरे पीछे पीछे रहेगा। ये ट्रैफिक अभी थोड़ी टाइम में ट्रैफिक चली जाएगी। वो इसी चंबा के आसपास रहता है थोड़ा ट्रैफिक। अब रोड खाली हो जाएगी, अब गाड़ियां आएंगी बट वो ट्रैफिक वैसा वाला ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो आज था नहीं ट्रैफिक, अदरवाइज चंबा में बहुत ट्रैफिक होता है अगर दोपहर के टाइम पे आओ। अच्छा यहाँ से कहाँ जाना है? दिल्ली, हरिद्वार, ठीक है सीधा ही जाना है। तो देहरादून दिल्ली दिखा रहे 315। यार जब जहाँ से आया था मुझे लगता है गलत रूट ना लेना। भैया 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 भाई भाई वो वाला रास्ते कहाँ जाता है? अच्छा थैंक यू। अच्छा आई गॉट इट। वो रास्ता जाता है उत्तरकाशी, जहाँ हम एक बार वो लास्ट ट्रिप पे गए थे। थोड़ा भूल जाता है यार, होता है अपन। तो बेस्ट है, पूछ लो यार किसी से। दे आर मोस्ट वेलकम टू हेल्प। चलिए सो ये एक मोड़ आएगा जिस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है बिकॉज ऐसे अलग अलग। मैंने खिड़कियां खोल दी हैं थोड़ी, तो देयर कुड बी आउटसाइड नॉइज। ठीक है, सो दो मोड़ हैं। एक आपका आएगा मतलब सीधे ही आना है, चंबा से आपने राइट लेना है। फिर आपका एक रूट आएगा जो ऊपर साफ लिखा होगा हरिद्वार एंड ऑल, तो डोंट गेट कंफ्यूज लाइक आई गॉट। और यहाँ से रोड बहुत स्मूथ है, बट हाँ अभी मैं कैमरा ऑफ नहीं करूंगा। अभी आपको मैं लैंडस्लाइड दिखा, अभी रोड्स बहुत स्मूथ हो गया। देखिए यू हैव गॉट बिग बिग रोड्स but you will see landslides here and I'll show it to you. उसके बाद मैं कैमरा ऑफ करूंगा।
तो ये जो मोड़ जिसमें मैं कंफ्यूज हुआ हूँ ना, यहाँ पे एक रोड जाता है उत्तरकाशी और एक रोड जाता है डनोल्टी, ठीक है। दिस कम्स राइट बिफोर चंबा। तो आपने वहाँ पे डिसाइड करना है whether you want to go to उत्तरकाशी or you want to go हेलो हनुमान जी। एंड ये लोग कितने सारे बंदर हैं भाई, सब पेड़ पे चढ़े हुए हैं, पूरी आर्मी है। यहाँ से रोड इज वेरी स्मूथ बट लैंडस्लाइड्स होंगे बिकॉज ये एक्चुअली तोड़ तोड़ के बनाया। यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ लैंडस्लाइड्स इन डनोल्टी, और रोड पतली है, वो नेचुरल तरीके से इन्होंने बनाया, बट यहाँ बहुत तोड़ फोड़, मतलब फोर्सफुली रोड्स बनाए गए हैं। अब आप देखोगे रोड के साइड में दीवार वगैरह भी रख दी है, बट दीवार से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो हियर रोड्स आर वेरी गुड। आपको एक दो लैंडस्लाइड दिखाऊंगा, देन आई विल शट दिस वीडियो, आई विल क्लोज दिस वीडियो, बिकॉज ये रूट आगे कुछ नहीं है, आगे बस बहुत लंबा रोड है, बहुत सारे टर्न्स है एंड वेरी स्मूथ रोड्स, एंड दिस रोड विल गो स्ट्रेट टू ऋषिकेश। नो राइट लेफ्ट नथिंग, जस्ट वंडरफुल रोड्स। ये देखो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, बट ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं है जिसमें आपको चलाने में प्रॉब्लम हो। आपको मैं दो लैंडस्लाइड्स दिखाऊंगा जहाँ पे रुकना पड़ेगा, you'll have to let one side pass because इतना रूम नहीं है for two sides to carry on। यहाँ तो आप चला पा रहे हो और वहाँ नहीं चला पाओगे। वो लैंडस्लाइड अभी के नहीं है, आई थिंक इट वाज फ्रॉम लास्ट ईयर, पर वो पूरा निकाल नहीं पाया अभी तक बिकॉज वहाँ रेगुलरली लैंडस्लाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप स्पीड निकाल सकते हो। I mean, you don't have to drive at 30-40. You can pick to 50-60 also, but it's not allowed. यहाँ पे भी लिखा हुआ है 40 स्पीड लिमिट। तो आराम से ही जाओ यार, क्या बोलो। The roads are good. ऐसे रोड्स को देख के ना पीपल कम। बट आपको मैंने डनोल्टी वाला रोड भी दिखाया, वो रोड पे जो ट्रैफिक है नेक्स्ट टू जीरो, चंबा वाला। चंबा से आइए जब भी आओ डनोल्टी। मसूरी से नहीं। In fact, people have started using this road a lot because Google भी यही recommend करता है। Because जो मसूरी to डनोल्टी वाला रोड है, that's only 60 kilometers, but the roads are very narrow and the roads are bad. यहाँ का देखो रोड, it's wide open and people love to drive here. तभी, I mean, especially people who are driving in the metros, you know, especially Delhi में तो you know you have big roads, so they love driving here. बीच में रुकेंगे कहीं, पहले एक बार आपको लैंडस्लाइड दिखा दो, उसके बाद आई विल स्टॉप एंड हैव अ वॉक। आई थिंक अभी वी माइट हैव कवर्ड अराउंड 30 किलोमीटर्स बाय नाउ, आई एम नॉट श्योर, बट हम चंबा वंबा से निकल आए हैं। अब रोड ऐसी रहनी है, बीच में दो आएंगे आपके पास लैंडस्लाइड खतरनाक वाली। आई होप कल बहुत रात को ना बारिश हुई है यहाँ पे डनोल्टी, तो
आई एम नॉट श्योर इफ वो लैंडस्लाइड और बेकार हो गई हो. देख रहे हो रोड्स आर टू इजी टू ड्राइव ऑन. खाली रोड है लंबे लंबे देर तक. तो कोई नहीं है आसपास. यहाँ पे झटके से आती है गाड़ियाँ. बट इट्स सो ओपन, यू डोंट हैव टू वरी. व्हाई? बिकॉज वाइड रोड. हाँ, चंबा धनोल्टी वाले रोड पे थोड़ा आपको फिक्र करने की जरूरत थी. यहाँ तो इट्स प्रीटी इजी. यहाँ तो आराम से ड्राइव करो. lot of spots where you can actually wait and you can have your tea, breakfast. FM try करते हैं यार कुछ. कुछ तो डाल दे भाई. मिर्ची भी नहीं चल रहा है. मिर्ची FM चल रहा है तो रेडियो सुन रहे थे. जिसको आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं. तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक तो बहुत क्या सुना रहे हो? वीडियो हो जा रहा है और वो बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है. तो उसका किलो से ध्यान से. इसको बड़ी जल्दी दी है. मेरे साइड पे आ रहा है. बॉडी को इम्यूनिटी नहीं देती. कोई बात नहीं. अरे बहुत लंबा ड्राइव है ऐसे. क्या देख रहे पत्थर? Stop this video for some time. Yeah, we should wait for the landslide. मैं एक दो लैंडस्लाइड दिखाना चाहता हूँ. उसके बाद आई थिंक मैं बंद कर दूँगा. आपका एक चीज है. योर ब्रेक शुड बी गुड. गेट योर ब्रेक चेक्ड ऑलवेज when you come for any trip to Penalty, because यहाँ तो चलो फिर भी वाइड रोड्स हैं. बट Penalty वाले रोड आपने देखा था, इट वाज अ बिट नैरो. तो वहाँ आपको यू नीड द ब्रेक्स टू बी परफेक्ट. और यहाँ ना कीलों से ध्यान से चलना. या कहीं भी सडनली कील मिल जाती है भाई. तो नीचे रोड पे भी ध्यान रखना.
अब ये जो ट्रक्स देख रहे हो आप, आपका थोड़ा सा कभी गुस्सा आएगा यार, ये ट्रक ने पूरा रोड यहाँ तो चलो हम ओवरटेक कर लेंगे, पर वो नैरो रोड पे भी आप ट्रक्स देखोगे चंबा के बाद टू डेनोल्टी, और आप आगे नहीं जा पाओगे बिकॉज रूम ही नहीं होगा, एक ट्रक पूरा रोड कवर कर लेगा। पर इसमें गुस्से होने वाली बात नहीं है, ये ट्रक से ये जितने भी लैंडस्लाइड होते हैं ना, उसमें सारे पत्थर वत्थर गिरे होते हैं, वो सारे पिक करके जाते हैं, मतलब दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, राइट। सो लेट्स वेट, यहाँ तो हम चलो आगे निकल जाएंगे इससे, बट वैसे बता रहा हूँ नैरो रोड पे अगर आपको मिल जाए तो गुस्सा नहीं करना, वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, आपके बाइकर्स यहाँ बहुत आते हैं, गड्ढे बहुत है यहाँ पे, जो periodically they keep working on it. तो आपको गड्ढों से थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ थोड़ी आप स्पीड ले लोगे पर फिर चलनी गड्ढा आ जाएगा। बी केयरफुल ड्राइविंग हियर। ये तो बहुत यार आलीशान जगह है, बहुत वाइड रोड, यही होता है मेन लैंडस्लाइड। आई थिंक वो लैंडस्लाइड वाला रूट आ चुका है, बिकॉज बिल्कुल इससे पहले हुआ है ना लैंडस्लाइड। देखो यहाँ भी पत्थर गिरे हुए हैं, जो साइड में कर दिया है। सही टाइम पे आए हो, विच इज अप्रैल। अप्रैल में वेदर इज गुड। दिल्ली में तो गर्मी हो चुकी है, जून में आ जाइए आप यहाँ छुट्टियों में, बारिशों से पहले। दैट इज ऑल्सो गुड। इतना लंबा रूट है, आप देख रहे हो। देखो इतना कुछ रूट बताने का है नहीं। मैं अभी जहाँ तक ऋषिकेश तक मैं बताऊंगा कि ऋषिकेश से तो ऑल यू हैव टू डू इज कम स्ट्रेट। गूगल मैप यूज कर लो यार। ये देखो यहाँ एक और गया लैंडस्लाइड, बट यहाँ भी चलाने में प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं दो लैंडस्लाइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको रुक के चलाना पड़ेगा, बिकॉज आपको थोड़ी चढ़ाई वढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। एंड इट इज नॉट, ये देखो यहाँ भी थोड़ा और रखा है, बट स्टिल खाली है, वन कैन ड्राइव। अब इतने खुले रोड्स देखते हैं ना, so people coming from the city, they want to drive fast, but those who are local here, अब मैं भी देखा जाए लोकल ही बन गया हूँ, इतनी बार आया हूँ यहाँ पे, तो इतने वाइड रोड्स देख के मैं एक्साइटेड नहीं होता, पर हाँ ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं पहाड़ों में इतने बड़े रोड्स। हाँ, the first time I came here, I was a bit excited. तब मैंने चलाया था थोड़ा तेज चलाया था, because
अच्छा लगा था, तब नया नया बना था ना. There was no landslide, nothing, clear road. ये देखो आ गया. This is the first landslide. ये देखो अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, as you can see. आज भीड़ नहीं है, तो कल मैं आया था एक साइड पूरा कवर हो गया था. तो यहाँ चढ़ना पड़ता है थोड़ा आराम आराम से. काम चल रहा है ऑलरेडी, आराम आराम से जाना पड़ेगा. देख रहे हो भाई, देखो इफ यू इन SUV चलता है. मेरा आई डोंट हैव वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑन माय Hyundai, तो यहाँ बहुत आराम आराम से जाना पड़ता है. ये तो आगे आपका मडगार्ड है ना, इफेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक. चलो यहाँ से तो बच के निकल गए. अभी आगे एक और है. You have to drive very carefully. ब्रेक लगा के चढ़ना होता है, बिकॉज अगर आपका मडगार्ड हिट हो गया ना और टूट फूट गया फिर तो आपकी लग गई. ड्राइव वेरी केयरफुली. ऐसी एक और आएगा आगे चल के, वहाँ तो कीचड़ भी है. तो आई होप अभी थोड़ी धूप से कीचड़ कम हुई हो. लैंडस्लाइड आएगा, आई विल टर्न ऑफ द वीडियो बिकॉज और कुछ दिखाने लाइक है नहीं. एवरीवन नोट द रूट. जो मेन था वो आपका धनौल्टी का बताना था, क्या रूट आपको फॉलो करना चाहिए. चंबा का एंड प्लस रोड सिखानी थी आपको कितनी वाइड है. तो ये रोड आधी रह गई है, जैसे यहाँ भी छोटा मोटा लैंडस्लाइड हुआ है. ऐसे काफी सारे लैंडस्लाइड हुए, जैसे ये है, यहाँ भी एक ही रोड बच रही है. तो ऐसे लैंडस्लाइड बहुत सारे आएंगे, बट साफ कर दिए जाएंगे. एक साइड तो रोड अवेलेबल होगी. ये देखो ये रोड हो गया खराब. इसमें काफी सारे गड्ढे हैं. ये गड्ढे मतलब गड्ढे क्या है, ये बेसिकली पत्थर गिरते हैं ना ऊपर से, तो इट लीव्स द रोड इन बैड कंडीशन. ठीक है, इतना तो चलता है भाई. लिफ्ट मांग रही थी, देता तो पता नहीं ना यार. आजकल दे भी सकते थे. क्या कर देते. मतलब देखो बहुत गलत गलत चीजें हो रही हैं, पर हर एक पे शक करेंगे तो. एक्चुअली बहुत स्पीड में था, मैं रोक नहीं पाया. तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं था, मगर इतने पे था कि मैं रोक नहीं पाया, सोचता रह गया. पर ये लोकल हो गई उनकी. दे सकते हैं. बट आई थिंक यहाँ जो शी मस्ट बी वेटिंग फॉर द लोकल कार्स, जहाँ पे 10 रुपए देके पहुँच जाते हो ना नीचे ऊपर. तो आई गेस शी शुड वेट.
एक बार मैंने आते हुए बच्चों को दिया था, स्कूल के बच्चों को वो बच्चे आके ना पीछे बैठ गए, जैसे मैं कोई ड्राइवर हूँ। हंसी आई मुझे और मैंने एंजॉय किया। वो दोनों बच्चों ने बड़ी बातें की मेरे साथ, बता रहे थे हम आर्मी में जाएंगे, फादर इज ऑल्सो इन आर्मी। तो मतलब दे वेल प्रिपेयर्ड, सेट गोल्स इन लाइफ। आई वाज लाइक वाओ। और ये बस का धुआं देखो, पता नहीं कौन से, ये दिल्ली में तो ना चलने देंगे इनको। अब यार दूसरे तक मैं वेट क्यों करूँ, दूसरे लैंड साइड तक। अभी क्यों ना वीडियो ऑफ कर दूँ। चल कोई बात नहीं, बंदर रास्ता काट गया भाई, जय हनुमान जी। मेरे अच्छा ही होगा। पीछे एक ऑल्टो आ रहा है, पिछले 20 मिनट से। खुली रोड है, ही कैन टेक ओवरटेक बट ही विल नॉट। वही बकरा फॉर्मूला। ये आ गया दूसरा लैंडस्लाइड, थैंक गॉड। कोई भीड़ नहीं है, यहाँ से तो आराम से निकल जाएंगे। एज यू कैन सी ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट देन इट इज इट्स अ लैंडस्लाइड जहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। आई मीन फॉर माई कार विथ वेरी लेस ग्राउंड क्लियरेंस, ये वही है, ये क्या बोलते हैं, ऑफ रोडिंग ही है मेरे लिए। दो इट विल बी नथिंग फॉर अ टाटा पंच और एनी मिनी SUV, बिकॉज उनका ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी गुड, वो इसी के लिए बना है। मेरे लिए, फॉर मी, आई वांट टू हैव गुड रोड्स, स्मूथ रोड्स, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, अब ये जा रहा है देवप्रयाग, गाजिया, दिल्ली। Delhi is showing 267 kilometers from here. Delhi यहाँ से है क्या? I think यही है। Hopefully. By the way, how did I come here today? मेरा आने का प्लान नहीं था। Then ऋषिकेश से मैं कहीं निकल रहा था। I mean, मेरे प्लान ऐसे बनते हैं, there is no plan. That is what the adventure is. So suddenly इतनी ट्रैफिक मिली मुझे ऋषिकेश में। There was a 3 to 5 kilometers traffic. 2 घंटे लगे निकलने में। वो तो अच्छा हुआ मैं निकल गया, बिकॉज दूसरे साइड पे जो लोग थे उनका तो अगले और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक था। तो मैं बच गया इन अ वे, बट देन अभी द सेम रूट आई एम टेकिंग, हो सकता है ऋषिकेश में मैं फंस जाऊं फिर। Hopefully ना फंसू, because today is a Monday, so it's not weekend, so possibility is आज कम हो। तो हाथ जोड़ के, crossing my fingers, I've left at the sky. So I think we should end the video now, because this road will go straight to Rishikesh, no right, left, nothing. Though the road is good,
but there's nothing much to show now. It's just the same. You know, wide roads and. So I think we should end this on a good note, and I will upload it. थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो है. आई थिंक 1 घंटे से तो मैं बोल ही रहा हूँ, या तो पूरा वीडियो डाल दूंगा कि 1 घंटे का हुआ. लास्ट वीडियो वॉज 59 मिनट्स. तो अगर इतना ही है तो मैं पूरा डाल दूंगा, नहीं तो एडिट कर देंगे थोड़ा. ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय. हाय गाय माता जी.